مومن اور مرد حق ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، ہم ان کو دل کے ساتھ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق، ضیاء الحق ضیاء الحق، مرد مومن مرد حق۔ تشریف لاتے ہیں جناب عبداللہ امین گل صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب قابل احترام اعجاز الحق صاحب جو ابھی آئے، مجھے بڑی خواہش تھی کہ اعجاز بھائی آئیں گے تو پھر مجھے موقع ملے، وہ کہ اعجاز بھائی کے پاس وقت کی قلت ہے، مجھے اس چیز کا اندازہ ہے بخوبی، اور میں اسی لیے اپنی بات کو مختصر کروں گا کیونکہ مجھے بھی کہیں جانا ہے ضروری۔ بہرحال میں بہت شکر گزار ہوں جناب صغیر اسد صاحب کا، ان کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا میرا، بہت ہم نے سفر کیے، اور انگریزی اور اردو دونوں والے سفر، اور ان کو میں نے بہت اچھا پایا، اچھے جذباتی، ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے پاکستانی، کام کرنے والا لڑکا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اسی طریقے سے نصرت قادر صاحبہ سے ملاقات مری میں ہوئی، اور درس و تدریس کا جس طرح سے وہ کام ایک فریضہ سمجھ کے انجام دے رہی ہیں، قابل ستائش ہے۔ ان کے اچھے خیالات سننے کو ملے، میں بہت متاثر ہوا، اسی وقت سے فیصلہ کروں گا۔ پھر یہاں شجاعت علی خان صاحب ہیں، اور صدر پنجاب، ان کا نام بڑا مزے کا ہے، اللہ توکل صاحب، پنجاب کو اللہ توکل نہ چھوڑنا باقی خیر ہے۔ اور اسی طریقے سے عبدالقادر راجن صاحب بلوچستان سے کچھ آئے ہوئے میرے بھائی مجھ سے ملے، میں ابھی کیونکہ حالیہ بلوچستان کے دورے سے آیا، بہت ایک تڑپ ہے بلوچستان میں پاکستان کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم شرمسار ہیں، ہم نے وہ کردار ادا نہیں کیا بلوچستان میں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، لوگوں کو بہت ہم نے ڈپرائیو چھوڑ دیا، بہت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نام کی بہت باتیں ہوتی ہیں کہ بلوچستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، روڈیں دینے سے بہتر ہے ان کو ہسپتال دے دیں، اسکول دے دیں، ان کو جو ہے اگر 70 سال گزرنے کے بعد بھی روڈ، ہسپتال اور اسکول اور متبادل کاروبار کی سہولت میسر نہیں ہے تو پھر وہ کیا کریں؟ وہ پھر ایرانی پیٹرول ہی بیچیں گے اور کیا کریں گے؟ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یقیناً یہی کام کرتا۔ اس لیے وہ نظریہ جو وہاں پنپ رہا ہے، اس کے باوجود وہ پاکستان کے جھنڈے سر بلند کرتے ہیں، بہت کمال کے لوگ ہیں۔ بلوچ قوم، وہاں کے پشتون قبائل، اسی طریقے سے وہاں کے بروہی لوگ، وہ بہت بڑے لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں، جو صبح بکری کے دودھ سے ناشتہ کرتے ہیں اور دوپہر کو کھجور کے ساتھ روٹی کھا لیتے ہیں۔ اتنی وہاں بدحالی ہے، سبزیاں تک ایران سے آتی ہیں، ان کے پاس کوسٹل بیلٹ کے اوپر پیٹرول پمپ تک نہیں ہے۔ کوسٹل بیلٹ کے اوپر جب آپ جاتے ہیں اسی پاکستان کے اندر تو آپ کو نظر آتا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ کوسٹل بیلٹ کے اوپر آپ اب داخل ہو گئے ہیں، 800 کلومیٹر آپ کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے، اپنے ساتھ ایکسٹرا جیری کینپ رکھیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ تک پہنچانی میرے فرض ہے۔ یہاں میرا بھائی ایک پگڑی والے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت انہوں نے پگڑی پہنی ہے، اسی طریقے سے ہماری بہنیں کچھ جو ہے سر پہ دوپٹہ اور کچھ نے جو ہے اپنا منہ ڈھانپا ہوا ہے۔ یہ ہماری مشرقی روایات اور پاکستانی کلچر کی نشانیاں ہیں۔ ہم جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، ہمارے کوئی بھی کپڑے ہوں، ہمارا کوئی لباس ہو، لیکن پاکستان کے لیے ہم ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہم ایک ہی قوم ہیں الحمدللہ۔ یہ ہمارا میرے خیال میں فخر ہے۔ ہمارے کچھ کیونکہ اور مہمان بھی آئے ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہرحال کیونکہ وقت کو ملوث خاطر رکھنا ہے اور باتیں بہت ساری ہیں، جذباتیت کی بھی بات ہوئی، یہاں پاکستانیت کی بھی بات ہوئی، لیکن بحیثیت پاکستانی قوم ابھی تعلیم کی بات بچی نے بڑی خوبصورت کی، انگریزی زبان میں بھی کی، اردو زبان میں بھی بات ہوئی کہ تعلیم ہمیں کیا دیتی ہے، تعلیم ہمیں بہت اچھا بناتی ہے، تعلیم ہمیں جو ہے وہ چاند کے اوپر
لے کے جاتی ہے یقیناً، اور تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم کے اوپر عمل کرنا دو مختلف زاویے ہیں۔ تعلیم کے اوپر جنہوں نے عمل کیا ہوتا تو موٹر وے کے اوپر خاتون زیادتی کا نشانہ نہ بنتی، تعلیم کے اوپر عمل کیا ہوتا تو غیر ذمہ دارانہ بیانات ان لوگوں کے پاس جو کہ تعلیم کے اندر بہت آگے نکل چکے ہیں ان کی طرف سے نہ آتے۔ اس لیے تعلیم کے وہ زاویے جو تعلیم بالخیر ہو اس کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو بچپن میں ماں باپ مختلف اچھے تعلیمی اداروں میں ڈالتے ہیں۔ ابھی یہ بھی کہا گیا کہ بہت جذباتیت سے کہ امیر کے بچے کہیں پڑھتے ہیں اور غریب کے بچے کہیں پڑھتے ہیں۔ میرٹ کیسے قائم ہوگا اس پاکستان میں؟ کیسے لوگوں کا استحصال ختم ہوگا؟ پاکستان کے آئین کے مطابق ہر خاص و عام کو تعلیم، یکساں تعلیمی نظام پرووائڈ کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، یہ آئین پاکستان کہتا ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ 4,20,00,000 بچے جن میں پرائیویٹ اور سرکاری اسکول شامل ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف 68.5% تقریباً جو نوجوان ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور تقریباً اس لحاظ سے 15 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ تعلیم ان کو حاصل کرنی چاہیے، جن میں سے 4,20,00,000 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کاش کہ ایٹم بم کے لیے جو پالیسی بنائی گئی تھی کہ ہم گھاس کھائیں گے، یہ اگر بات میرے بھائی آپ بات کر لیں میں پھر بعد میں بات کر لیں۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ کچھ بچے بچیاں یہاں جب تقریر کر رہے تھے پیچھے سے اسٹیج سے بہت بات چیت چل رہی تھی جو کہ مناسب نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پھر کانسنٹریشن لیول خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے وہ شاہین ہیں جن کا علی عمران شاہین نے بولا، یہ وہ بچے ہیں جن سے ہمیں خوشبو آتی ہے، جو ہمارے مستقبل ہیں۔ لیکن بہرحال آپ اگر وہ تعلیم کا معیار نہیں پورا کریں گے تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے گھاس کھائی لیکن ایٹم بم بنایا، اور شہید ضیاء الحق صاحب کا ایک بہت بڑا اس کے اندر ایک کردار تھا۔ گو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ پروگرام شروع کیا تھا، لیکن جنرل ضیاء الحق نے اس پروگرام کی پہرا دیا بھرپور انداز میں۔ میرے والد نے، ضیاء الحق صاحب نے، دیگر جو ہمارے شہداء تھے یا ہمارے غازیان ہیں انہوں نے بڑا مضبوط پہرا دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا نام نہ لینا بڑی زیادتی ہوگی، لیکن اسی قوم کے اندر یہ نیشنل یوتھ جو سامنے بیٹھی ہے، عبدالقدیر خان صاحب نے بڑا کردار ادا کیا۔ آج کہاں بیٹھے؟ پابند سلاسل ہیں، ریٹ پٹیشن دائر کرتے ہیں کہ مجھے بھی آزادی سے باہر نکلنے دیا جائے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے تعلیم تو حاصل کی، کیا ہم اپنے ضمیروں کو جگا سکیں؟ کیا ہمیں اپنے ہیروؤں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے؟ ابھی بہت یہاں باتیں ہوئی کہ بڑے بڑے ہیرو ہیں، اور ہمارے ہیرو اور علی عمران نے جس طرح سے بتایا تیرا سے دیگر علاقوں سے، ان کو تو آپ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اگر میں اٹھ کے پوچھ لوں کہ تاریخ کیا ان کی تو آپ کیا بتائیں گے؟ اب سے تو 11 شہداء کی داستان نشان حیدروں کا نام پوچھ لوں تو وہ بتانے کے لیے کون ہے جو ہاتھ کھڑا کرے؟ آج تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، آج تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شمشیر و ثنا، اللہ کا نام اور شمشیر کا سہارا لیا، اور دنیا اور آخرت میں عزت کا مقام پایا۔ لیکن طاؤس و رباب پہ کھڑی ہوئی قوم کہاں جا رہی ہے؟ آخرت کی منزل پہ جا رہی ہے۔ یقیناً پاکستانی قوم دنیا کی عظیم ترین قوم ہے۔ یقیناً دنیا کے اندر ہمیں بدنام کر کے پیش کیا گیا، جس طرح میرے پہلے مقرر بھائی یہاں کہہ رہے تھے۔ اچھا بنا کے کیسے پیش کریں گے؟
कैसे आप क्यों मान लें? क्या सलाहुद्दीन अयूबी को वो मान लें? उनका हमारे साथ क्लैश है, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। जैसे सैमुअल पी हंटिंगटन कहता है, क्लैश ऑफ रिलीजन्स है, क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी है, एक नजरियाती क्लैश है जिसके अंदर ओनली इस्लाम विल प्रिवेल। पाकिस्तान खड़ा होगा उसके अंदर, बाकी नजरियात डूब जाएंगे, क्योंकि वो डूबने के लिए है, पाकिस्तान जिंदा रहने के लिए। आप लोग नारा लगाए। अभी हमारे भाई ने, बहुत खूबसूरत बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? ऐसे लीडर्स को अपने नहीं मानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुछ नहीं कर सकते, टाइम नहीं दे सकते सिर्फ पाकिस्तान वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीय्यीन। पाकिस्तान की लीडरशिप करेंगे। मैं सबसे पहले तो नेशनल यूथ कन्वेंशन के ऑर्गेनाइजर जनाब सगीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे आज बड़ी खुशी हुई है। मैं सिर्फ आज जो यूथ यहाँ पर आई हुई है, बुजुर्ग भी है, नौजवान भी हैं, कुछ यूथ की लीडरशिप भी है, हमारे मौलाना सुनील साहब के फर्जंद मेरे छोटे भाई भी मौजूद हैं। मैं सगीर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आपका ये यूथ का कन्वेंशन है, इसमें कुछ बातें होती हैं लोगों की इस्लाह के लिए, कुछ बातें होती हैं अहद वफा करने के लिए, कुछ बातें होती हैं अपने मुस्तकबिल के लिए। तो ये तो मेरे बच्चों की तरह है। अमूमन ये होता है कि लोगों का कंसंट्रेशन स्पैन जो है ना, बड़ा छोटा होता है। जो बात करनी हो वो 5 या 10 मिनट में आप अपनी कर लें। 2 घंटे की तकरीर में लोगों का कंसंट्रेशन स्पैन जो है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो जितनी मुख्तसर बात करेंगे उतनी वो जामे होगी। तो इस माशाल्लाह सबसे पहले तो मैं यूथ को 1, 2, 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये मुल्क जो है, सबको मालूम होना चाहिए, एक नजरियाती मुल्क। मेरा ख्याल है दुनिया का वाहिद वो नजरियाती मुल्क है जो कि कुर्बानी से बना, जिसके लिए हमने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। और यहाँ बहुत से लोगों ने ये कहा, सगीर साहब समेत और अब्दुल्ला कुल समेत, कि अल्लाह के फजल करम से, और मेरा ये यकीन है, मेरा ये ईमान है कि पाकिस्तान जो है ये ता क़यामत जो है जिंदा और ताबिंदा रहेगा। लेकिन मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ, हो सकता है 1971 के बाद पैदा हुए हों बहुत से लोग, लेकिन ये वही पाकिस्तान था जिसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी थी, जिसके लिए हमने हिंदुस्तान के अंदर लाखों जानों की कुर्बानियाँ दी, लेकिन एक बाजू हमारा काट दिया। कितने लोगों को इस बात का एहसास हुआ, कितने लोगों को इस बात की दर्द हुई, कितने लोगों ने इसका बदला लेने के लिए अज़म किया। बल्कि हम तो आकर सजदे करते। उस नजरिए को आप छोड़ देंगे जिस नजरिए के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। मैं तो 2nd जनरेशन हूँ, पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुआ हूँ। आज की यूथ को जो 3rd जनरेशन है, 4th जनरेशन अब आ रही है, उनको तो पता भी नहीं कि पाकिस्तान कैसे बना था, क्या कुर्बानियाँ हमने दी थी। हम तो अपनी दादी से, अपनी फूफियों से, अपने चचा से, अपने मामू से ये सुनते थे कि पाकिस्तान कैसे बना जब हम छोटे छोटे थे। हमारे कान में एक तो अजान दी गई और दूसरा ये बताया गया कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमने क्या क्या कुर्बानी दी। कि माँ को नहीं पता था कि बेटा किस तरह पाकिस्तान पहुंच गया है, बाप को नहीं पता था कि भाई किस तरह, मेरा भाई किस तरह पाकिस्तान पहुंच गया है। कोई वालदा के साथ उंगली पकड़ कर चलना शुरू कर दिया, किसी ने बाप के साथ उंगली पकड़ के चलना शुरू कर दिया, और वो किस मुश्किल से इस मुल्क में पहुंचे। और कुर्बानी का जज्बा ये था कि पीछे मुड़ के नहीं देखा,
کہ میں زمیندار تھا, میں ٹھیکیدار تھا, میں لاکھپتی تھا, میں کروڑپتی تھا, میری دکان تھی, میری جائیداد تھی, سب کچھ چھوڑ کر وہ پاکستان آ گئے. اور پاکستان بننے کے بعد کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں پنجابی ہوں, کہ بلوچ ہوں, کہ پٹھان ہوں, کہ مہاجر ہوں. سب نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں. یہ جذبہ تھا پاکستان میں. میں اپنا قصہ آپ کو سنا دوں جو میں نے سنا اپنے بزرگوں سے, شاید آپ نے بھی سنا ہو, کہ میرے دادا جب آئے پاکستان تو انہیں ماڈل ٹاؤن لاہور میں گھر ملا. ان کا ایک دوست تھا, ساتھی تھا, جو ان کے ساتھ کام کرتا تھا, اس کو پشاور میں گھر مل گیا. وہ میرے دادا کو ملنے کے لیے آیا, اس نے کہا میری مجبوری ہے, میں نے لاہور آنا ہے, آپ میرا گھر لے لو, مجھے اپنا گھر دے دو. انہوں نے سامان باندھا, پوٹلی سر پہ رکھی, وہ پشاور چلے گئے, وہ لاہور آ گئے. انہوں نے تو نہیں سوچا یہاں پٹھان ہوں گے, یہاں فلانا ہوگا. وہ تو جلندھر سے تعلق رکھتے تھے. ساری عمر ہماری پشاور میں گزری. میں نوشہرہ میں پیدا ہوا. میرا ڈومسائل جو ہے KPK کا ہے. کبھی یہ نہیں سوچا تھا. آج ہم سوچتے ہیں کہ میں سندھی ہوں, میں مہاجر ہوں, سندھ کے ساتھ ظلم ہو گیا, بلوچستان کے ساتھ ظلم ہو گیا, پٹھانوں کے ساتھ ظلم ہو گیا, پنجابیوں کے ساتھ ظلم ہو گیا. جس دن ہم پاکستانی ہے, بھرپور انداز میں استقبال کیجیے. تشریف لاتی ہیں میڈم نصرت قادر. شان صاحب, اور مختصر تو نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے پاس یوتھ کے لیے ان امپلائمنٹ جو ہماری سوسائٹی میں ہے اس کے لیے ایک پلان ہے, تو یہ مختصر نہیں ہو سکتا. لیکن میں اپنی تقریر آپ شروع کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اور 1 منٹ اجازت رکھ صاحب, میری بات سنیں. آپ جیسے لیڈر اس ملک کے ہیں, اسی وجہ سے ہماری یوتھ کا یہ حال ہے. ہمارے ملک کا یہ حال اس لیے ہے کہ آپ لوگ اس ملک کے عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے. آپ لوگ صرف اپنا VIP پروٹوکول چاہتے ہیں. آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ اس ملک کے لیڈرز کو دیکھیں. عبداللہ امین صاحب آئے, 5 منٹ آپ لوگوں کو اپنی بات سنائی. جو بات انہوں نے کی بالکل ٹھیک کی, لیکن ہی از دا لیڈر. اگر وہ لیڈر ہے تو پھر اسے آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے. کم از کم روز اس طرح کے یوتھ کنونشنز نہیں ہوتے اور وہ 5 منٹ 7 منٹ بولے اور چلے گئے. اپنی بات سنانے کے لیے آئے اور چلے گئے. یوتھ کا کسی کا آپ اتنے معززین بیٹھے ہیں, انہیں کیا پتا یہاں پہ ٹیچر رہتے ہیں. جی میں یہی کہہ رہی ہوں, میں نے تو یوتھ کو امپلائمنٹ پلان دینے کے لیے بلایا ہے اور میں انشاءاللہ ایک پلان لے کر آئی ہوں اور میں دوں گی. اور میری بہت ساری جی ہم سب کو پتا ہے ان کے والدین نے کیا کیا. وہ اچھے لوگ تھے یا برے تھے یا وہ کیسے تھے, وی نو ایوری تھنگ. ہمیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں. ہمیں یہ بتائے ہمارا نوجوان کس طرح اس ملک میں عزت سے زندگی گزار سکتا ہے. اس کے لیے وہ زندگی اچھے سے نہیں گزار رہا کیونکہ لیڈر ان جیسے ہیں, کیونکہ ہمارے لیڈرز کے پاس عوام کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے, کیونکہ ہمارے لیڈر صرف اپنی عیاشیوں کے لیے بیٹھے ہیں اور انہیں پروٹوکول چاہیے اینڈ دیٹس اٹ. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ سب ایسے لیڈرز منتخب کریں, ایسے لیڈرز آگے لے کے آئیں. آپ خود لیڈر ہیں جو مڈل کلاس سے اٹھ کے آئے تاکہ اس ملک کے مڈل کلاس ہمیں پتا ہو کہ اس ملک کے لوگوں کی کیا تکلیفیں. اگر ہم لوگوں کو ایلیٹ کلاس سمجھ سکتی تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. پاکستان میں ہم لوگ بہت زیادہ ترقی اسی وجہ سے نہیں کر سکتے بلکہ کر ہی نہیں سکتے. اور خاص طور پہ ہماری یوتھ رول رہی ہے. کیوں رول رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے لیڈر
लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। अब हम अपने नौजवान को सीधे रास्ते पे लेके जाएंगे, हम अपने नौजवान को भटकने नहीं देंगे। ये जरूरी है आप नेशनल यूथ का साथ दें, हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे। हम इस माफिया से जो इस पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, हम इससे अपने मुल्क को आजाद करवाएंगे। हमने गरीब लोगों का साथ देना है, गरीब लोगों को आगे निकलना है, गरीब लोगों की खातिर काम करना है। हमने कभी भी किसी एलिट क्लास के लिए उस तरह काम नहीं करना जैसे पहले वो हमें यूज करते रहे। के तकरीर करना कोई ज़रूरी नहीं होती है किसी प्रोग्राम में आने के लिए। मैं आप सबका खराज तहसीन पेश करता हूँ जो नेशनल यूथ पाकिस्तान के साथियों ने बनाया है। जनाब सगीर हसन साहब कम है, हमें इसका एहसास है। मैडम नुसरत कादर साहिबा कि आपने नौजवानों को यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया है। नौजवानों से गुजारिश ये है कि अपनी लाइफ में बहुत अच्छी साथियों ने बात की है कि आप ये ना देखें कि हमारे पास वसैल होंगे या कोई मामला होगा तो हम इस मुल्क के लिए या अपने दीन के लिए कुछ करेंगे। नहीं, आप जहाँ जिस जगह पे भी हैं स्ट्रगल करें अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने वालिदैन के लिए, इस मुल्क के लिए और दीन के लिए। आप इस बात का ना इंतज़ार करें कि मेरे पास वसाइल आएंगे, मैं किसी बड़े ओहदे पे जाऊंगा या कोई बड़ा मामला मुझे मिलेगा तो फिर नहीं। आप स्ट्रगल करें, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। जो बंदा मेहनत करता है अल्लाह पाक उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। दूसरा बहुत अच्छा इस प्लेटफॉर्म से एक पैगाम गया है, बहुत दिल को खुशी हुई है कि इन्होंने जो पाकिस्तान बनने का नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और वो बुरा लग रहा है। साथ ये था कि दस्तूर रियासत क्या होगा, वो था मोहम्मद रसूलुल्लाह। काज़ी आज़म मोहम्मद अली जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम। बगैर कोई तमहीद बांधे लंबा टाइम लिए क्योंकि हमारा एक जनाजा हो गया है, उसमें भी मुझे जाना है, तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं भी बात करने जा रहा हूँ उसको जरा गौर से सुनिए, क्योंकि मैं खुद नौजवान हूँ और 16,000 मुलाजमीन की CDA में नुमाइंदगी करता हूँ, जिसके अंदर गरीब मुतवस्सित तबका, इसमें माली है, बेलदार है, खाकरोब है, नायब कासिद है, गरीबों के बच्चे काम करते हैं। और मेरे वालिद ने मरहूम फरद कमाल पाशा साहब जिन्होंने इस इदारे को पेंशनेबल करवाया, यहाँ पे इस्लामाबाद में जो H11 और H8 का कब्रिस्तान है ये बनाया, तो मैं यहाँ पे बड़े बड़े मौजूद बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की और बातें करके वो यहाँ से चले गए। और मेरे भाइयों और बहनों, जिस अशराफिया के खिलाफ, जिस कब्जा ग्रुप के खिलाफ, जिस टोले के खिलाफ ये कन्वेंशन बुलाया गया है, अगर वही हमें बातें सुना के चले जाए तो हमारा क्या नुकसान है। हमें इतना ज़र्फ, इतनी शर्म, इतनी हया होनी चाहिए कि हम उन लोगों की बात सुन के जाएं जो गरीबों की नुमाइंदगी करते हैं। और मैं अपनी बहन नुसरत कादर साहिबा आपसे, अब्दुल कादिर राजन साहब आपसे, सगीर हसन साहब या सगीर हसन साहब आपसे आज एक ऐलान करते हैं और इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा कि जैसे जब कौमी इलेक्शन आते हैं, इलेक्शंस करवाए जाते हैं ना पूरे पाकिस्तान के अंदर, ऐसी पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट लाई जाए कि जिस तरीके से ये बड़े बड़े MNAs और MPAs इलेक्ट होके आते हैं, ये किसी मिनिस्टर के बेटे होते हैं, किसी MNA के सन होते हैं, इसी तरह कानून बनाया जाए और लोअर लेवल पे भी कौमी इलेक्शन करवा के यूथ को। क्या ले रहे हैं आप? फोटोशूट करने आए, कोई तब्दीली की बात करते हैं। मेरी बहन से बीच करती, माजरत से किसी को बुरा लगा, कुछ नहीं हो सकता। इस बच्चे के लिए स्पेशल तालियां, सलाम है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं यूथ कन्वेंशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे हम अपने मसले को लेके आए हैं। मैं इस टाइम पूरी आज़ाद कश्मीर की जो IT यूनियन है मैं उसको रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। मेरे साथ मेरे बाकी एम्प्लॉइज भी आए हुए हैं। टाइम का मैं जो ये सारे नहीं बोल सकते, गर्ल्स की तरफ से, फीमेल्स की तरफ से मैं बोल रही हूँ और बॉयज़ की तरफ से उन्हें कुछ टेक्स्ट किया हुआ है। मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबको कि हम लोग बाकायदा 2019 में एक सिलेक्शन कमेटी के तहत सिलेक्ट होके इंटरव्यूज और टेस्ट के तहत सिलेक्ट होके हम लोगों ने IT की तालीम देना स्टार्ट की। हमें इन्होंने 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब दी। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मेरी समझ में नहीं आता वो कौन सा इदारा है, वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे 6 महीने क्लासें लगाई जाती है। मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को सबसे पहले तो मैं सगीर असद साहब को और बेगम मुसब कादिर साहब हैं, इन सबको और हमारी जो नेशनल यूथ की टीम है उन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा इस कामयाब कन्वेंशन की। ठीक है, और दूसरा ये कि हमारा अलमिया है कि हमें कुछ चटपटी बातें पसंद आती हैं। हमें अगर कोई बता दे कि फलां जगह 5 कत्ल हो गए, 4 कत्ल हो गए, ये मारा गया, वो मारा गया, वो पसंद आएगा। लेकिन जो मैडम ने यूथ के लिए जो प्लान दिया है उसको शायद किसी ने इतना गौर से नहीं सुना। यकीन करें हमारे साथ जितने भी लोग हैं, सगीर असद साहब हैं, अब्दुल कादिर और अटक से हमारे भाई बाबर साहब, काली दानिश साहब, ये सब प्रैक्टिकल लोग हैं। इनमें से किसी ने खुद से MLA का MPA का इलेक्शन नहीं लड़ना, किसी को कोई लालच नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल लोग हैं। ना हमने नेशनल यूथ कन्वेंशन या इसको कामयाब करने के लिए हम कोई मजहबी कार्ड नहीं खेलेंगे, हम सिर्फ अमली लोग हैं। हमने यूथ के लिए कटक किया है सबको, और हमारा मकसद भी यही है कि जो हमारी पाकिस्तान की यूथ है और जो काम करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए वो सब आगे आए हैं, हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे चेयरमैन सगीर असद साहब के साथ इकट्ठे हों, हम मिलकर काम करें। तो डेक्लेरेशन का जो सिस्टम है उसको मैं जो है वो मुख्तसर से मुख्तसर कर रहा हूँ। मैं इसके बाद पंजाब इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम और पंजाब इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ साइंसेस मटियाल अटक से दावत दूंगा आमना अब्दुल हकीम को कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। शुरू करती हूँ अल्लाह के उस पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सदर महफिल और मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है मुल्क की तालीम और तरक्की में नौजवानों का किरदार। तालीम अपने जोरे बाजू पर तरक्की की आला मिसाल कायम करती है, इनके समंदर में गोते लगाती है, इनके अलग को ऊंचा करती है और फिर हकीर सी सुई से लेकर भारी भरकम जहाजों पर अपने नाम के ठप्पे लगवाती है और ये ऐलान करती है मेरे हाथ में कलम है मेरे ज़हन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है मेरे ज़हन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्र है अपने अलग तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूह होने वाला, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूह होने वाला। क्योंकि तालीम fighters, we can't do anything. We can't do anything without the support of the government and their citizen fellows. So the youth should be given an opportunity to express themselves, so the youth can make their beautiful land flourish and shine in success. Thank you so much everybody. फ्रेंड मिस्टर एहतशाम सलीम एबटाबाद से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरे मेहमानों, मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो उन्होंने प्रोग्राम किया, ये मेरे जैसे ताकि कामने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि ये इधर आके आगे फिर पहुंच जाएंगे। तो आज पहली बार में भी काम ना हो। जनाब सदर, जो नौजवान होते हैं ये कौम की रील हड्डी होते हैं।
जैसा कि कौन नौजवान है अपनी कौम को अच्छी तरफ लेके जा सकते हैं। अफसोस के साथ आज हमारा नौजवान नाइट पार्टीज और इस तरह की पूरी गेमिंग मंशियात में पड़ा हुआ है। तो जवान सदर, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आज़ाद तो 14 अगस्त 1947 को हुए थे, मगर आज भी हम कुछ करप्ट तनासी से आज़ाद ना हो सके। जनाब सर, हमारे मुल्क में आज भी एक नौजवान की मुस्तकबल का फैसला उसकी जात पात नस्ल को देखकर किया जाता है। इस वजह से गैर जानबदारी और नाइंसाफी की वजह से कई नौजवान अपनी टैलेंट को रह जाते हैं। ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए। खिर्द को गुलामी से आजाद कर, खिर्द को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। इकबाल क्या खूबसूरत कलाम कह गए, क्या खूबसूरत शेर कह गए कि ऐ मेरे रब, इन जवानों को बुजुर्गों का भी उस्ताद बना दे, इनको आगे लगा दे, ये कौम को आगे बहुत आगे लेके जाएंगे। अब मैं जिस शख्सियत को दावत खिताब देने वाला हूं वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। उनके वालिद भी और वो खुद भी इस पाकिस्तान के लिए जिस कदर खिदमात इंजाम दे चुके हैं और दे रहे हैं, उनका शुमार करना मुश्किल है। उनके वालिद गिरामी 78 साल की उम्र में इस दुनिया से तशरीफ ले गए और आखिरी दिन भी और आखिरी दम भी कह रहे थे मैं रिटायर्ड नहीं हूं, मैं हाजिर सर्विस जनरल हूं और पाकिस्तान का मुहाफिज जनरल। उन्होंने कभी अपने नाम के साथ रिटायर्ड लिखना और कहलवाना गवारा नहीं किया और हर वक्त मैदान के अंदर रहे और उन्होंने मुल्क का हर फोरम के ऊपर अपनी जान के साथ, अपने खून के साथ, अपनी जुबान के साथ, दिन रात अपने पसीने के साथ जहां जिस चीज की जरूरत थी उन्होंने दिफा करके दिखाया। आखिर दम तक वो मैदान में सरगर्म अमल रहे। उनकी एक दो बातें आपको मैं सुनाना चाहता हूं। जो अल्लाह ताला ने उनको ऐसी जुबान अता की थी, वो जो जुबान से जुमला निकालते थे, जो लफ्ज निकालते थे, अल्लाह ताला उसको पूरा कर देता था। 9/11 हुआ, उन्होंने कहा कि वो वक्त आने वाला है कि बुश नहीं होगा और मुल्ला उमर होगा, और दुनिया ने देखा बुश चला गया। हमें अपनी कार की गंदम सेल करके आपको देना पड़ी, हम दे देंगे। इस कौम ने पहले भी अपनी जानें दे के लीडरों को आगे लेके आई है, लेकिन आप लीडर बने, आप आगे हैं। मैं ये सच्ची बात कर रहा हूँ, आप देख, ये अल्लाह शाहिद है, ये कोई तकरीर नहीं है, मैंने कोई लिखी हुई नहीं है, मेरे सामने कोई पेपर नहीं है, ये मैं नौजवानों की तर्जमानी कर रहा हूँ। पूरे मुल्क के नौजवान इजाजुल हक साहब चाहते हैं हम कुछ करें, लेकिन मसला क्या है कि उन बेचारों को कोई होप नहीं मिलती और उन बेचारों को डराया जाता है, उनको तासुब दिया जाता है, कोई ना कोई उनको तकसीम किया जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि ये क्यों ऐसा किया जाता है। सबने मर्द, मौलाना समीर हक साहब ने दुनिया के अंदर जिहाद का परचम बुलंद किया, जियाउल हक साहब ने दुनिया के अंदर कुफर के निज़ाम को ललकारा और प्रैक्टिकल काम करके दिखाए, हमीद गुल साहब ने बड़ा काम किया, दुनिया उनको सलाम करती है, आलम इस्लाम का मौसम करार देती है, बड़े इस तरह के नाम हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो क्या अब हम ये मकाम छोड़ दें कि हम जागलक करते, जियाउल सब करते थे और अब हम बस ये तस्करी करते रहे, जियाउल करते थे, हमीद गुल करते थे। भाई हमें करना है, अब हमें हमीद गुल बनना है, हमें जियाउल हक बनना है, हमें समीर हक बनना है। मुझे नहीं पता आपको मेरी बातों की समझ आ रही है नहीं, क्योंकि आप में से कोई मुझे लगेगा कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ। अभी हम बनना है और मुझे उम्मीद है कि मैंने जिस तरह हिसाब से अब्दुल्ला भाई का बड़ा कीमती टाइम था, आज वो पूरे मुल्क की एक तर्जमानी एक जगह करने जा रहे थे, बड़ी मुश्किल उनको रोका है, उम्मीद है कि वो उनका जो रायगा नहीं जाएगा। तो चेयरमैन सगीरा साहब जिंदाबाद, चेयरमैन सगीरा साहब नारे लीडरशिप के लगाए। मैं इनका बच्चा हूँ, कारकुन हूँ, छोटा हूँ, वर्कर हूँ और वैसे भी मुझे नहीं चाहिए, इनके किसी ने लगाना हो लगाएं। मैं चाहता हूँ ये किसी तरह आके निकले, इनको ज़रा पता चले कि वाकई कौम हमारे साथ, ये समझते मजाक कर रहे हैं, जैसे चीनी लेते हैं ना,
तो इनको ज़रा एहसास हो जाए कि वाकई कौम सीरियस है, कौम कुछ करना चाहती है और हम कौम के लिए आगे निकले। मैं ये अगर करते हैं ना तो वल्लाह मैं इनको नेशनल यूथ पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि हमें जो भी करना पड़ा, मतलब अपने खाने तक छोड़ने पड़े, हम इनको हर चीज़ देंगे, लेकिन ये कौम के लिए कुछ करने के लिए निकले। कौम की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तानियत की बात करें, फिर देखें कि ये नौजवान आपके जाने भी लुटा। माशाल्लाह यहाँ खादम रज़वी साहब का वफद भी बैठा हुआ है, मौलाना साहब मौजूद है। तो मैं इन सब से कहता हूँ कि आप सबको चाहिए इस वक्त कि पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के लिए निकले। तो ये तो थी मेरी एक लीडरशिप से गुजारिश और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी जायज़ थी। अगर भाई आप सब मेरे बड़े भाई हैं, अब्दुल्ला साहब, जितने भी एजाज हक साहब, किसी चीज़ का बुरा लगा हो, लगना नहीं चाहिए था क्योंकि मैंने कुछ बुरा कहा नहीं है, तो लगा हो तो कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि मैं कुछ बुरा नहीं कह रहा। तो लिहाजा आप लोग इसे एक्सेप्ट कीजिए और कोशिश कीजिए आगे बढ़ने की। इंशाल्लाह आपको आपकी टीमों से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स ना मिला तो फिर कहिएगा सगीरा से ऐसे बकवास कर रहे थे यार आप। सेकेंड, यहाँ मेरे सारे यहाँ पे कोई कारकुन नहीं है, सारी लीडरशिप बैठी हुई है। कोई माशाल्लाह लाहौर से अपनी टीम लेके नौजवानों की आया है, मतलब अपने यूथ पे काम कर रहा है। कोई इस्लामाबाद से है, यहाँ नौशहरा से सनाउल्लाह साहब तशरीफ फरमा है, वो अपनी टीम को लेके आए हैं। यहाँ गुजरावाला से हमारी पूरी एक टीम सबसे पहले आई हुई है, कोयटा से, दीगर शहरों से, यहाँ सारे लीडर बैठे हुए हैं। तो ये कि मौका है कि आज बामुश्किल हम लीडर इकट्ठे हो गए हैं। मैं कारकुन हूँ, आप सब लीडर हैं, तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह ने एक मौका बना दिया है तो आज क्यों ना एक तो आहद कर लें। यहाँ पे माशाल्लाह सरदार मजहर साहब मुख्तलिफ तलबा यूनियन की नुमाइंदगी करते हुए मौजूद हैं, मुत्तहिदा तलबा यूनियन हैं इनकी। यहाँ पे तंजीमुल ईवान पूरे पाकिस्तान की ईवान बरादरी के सरबराह मौजूद हैं। तो मैं ये आप लोगों से एक आहद करना चाहता हूँ। और देखें, मैं चाहता हूँ कि आहद हर जलसे में तकरीबन होते हैं, हर मीटिंग में होता है। आजकल तो डेली व्हाट्सएप ग्रुपों में आहद होते हैं, फेसबुक पे आहद होते हैं, हमारे ट्विटर आजकल ज़्यादा ट्वीट पे आहद हो रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से हुकूमतें ट्वीट पर चल रही हैं, तंजीमें ट्वीट पर चल रही हैं, सिर्फ बिजनेस ट्वीट पे नहीं चल रहा, बाकी सब ट्वीट पे चल रहा है। ये एक अजीब हमारे में तमाशा और मजाक बन गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ हम जो आहद करें उसमें पूरा उतरें। इसीलिए मैंने इन सबको भी बड़ी मुश्किल से रोका है कि हम चाहते हैं पूरे नौजवान, मेरी बहनें, मेरे भाई, हम एक आहद करें और फिर यहाँ से जाने के बाद पूरे मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ हम मौजूद हैं, अपने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए अपने अपने नौजवानों को, जहाँ जहाँ हमारे लोग, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार मौजूद हैं, उनको हम दावत दें कि हम ये आहद कर चुके हैं, आइए इस आहद की पासबानी करने के लिए, इस आहद की तर्जमानी करने के लिए, इस आहद के लिए सब मिलकर इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए निकले। तो क्या आप सब इस आहद के लिए तैयार हैं? ये हाथ तो कोई नहीं खड़े हुए, एक दो ने किए, मजाक कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ यार। जी हाथ खड़ा करेंगे तो हलफ करूंगा ना, आप इस पे हाथ खड़ा नहीं कर रहे, हलफ पे क्या करेंगे? तो प्लीज सारी लीडरशिप है, मजाक ना करें, सभी हाथ खड़ा करें कि हम एक आहद करेंगे और ये प्रैक्टिकल होगा। मैं सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंशाल्लाह इसमें पार्टिसिपेट करूंगा और ऐसा कारकुन करूंगा। मुझे कोई लीडरशिप की वो नहीं है, मैं हमेशा अपनी लीडरशिप की इज्जत करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। तो आहद सुनिए और इसमें सारे जरूर अपना लब्बैक कहिएगा। नंबर 1, जब तक जिएंगे पाकिस्तान और इस्लाम के लिए जिएंगे, मरने तक, खून के आखिरी कतरे तक, वो अब्दुल्ला गुल हो, इजाजुल हक हो, तहरीके लब्बैक की क़यादत हो, स्टूडेंट यूनियन की क़यादत हो, सीडीआई यूनियन की हो, टीचर्स यूनियन की हो, आजाद कश्मीर से आई यूनियन की हो, किसी भी यूनियन की लीडरशिप हो, सब जब तक जिस्म में आखिरी खून का कतरा रहेगा, सबसे मुअज़्ज़म अपने मुल्क के अंदर कुरान और सुन्नत और इस मुल्क की शान और मुकाम को रखेंगे। जो करेंगे, जिस वक्त करेंगे, जिस लम्हे करेंगे, सब इंशाअल्लाह उसमें हम कुरान और सुन्नत को मद्देनजर रखेंगे, इस मुल्क के दिफा को, मजबूती को, खुशहाली को मद्देनजर रखेंगे इंशाअल्लाह। मेरा स्लो हो गई है तो अभी हमारे देखें ये 2 पॉइंट लास्ट में है। हमने ग्रोही तासुब से
मसल की तासुब से, मजहबी तासुब से और दीगर ग्रुपों के तासुब से, सियासी तासुब से, मजहबी तासुब से निकलकर एक कौम बनने के लिए परचम पाकिस्तान के नीचे इकट्ठे होना है। तैयार है इसके लिए? सिर्फ पाकिस्तान के परचम के तले इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। हम वादा करते हैं इंशाअल्लाह, मैं लीडरशिप को यकीन दिलाता हूँ, आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह कभी ऐसा नहीं होगा कि आज पाकिस्तान का नाम लेके हाथ करें और कल आपसे मजाक कर दें। ऐसा करने वालों पे मैं आज इस इमाम पे एक सख्त हकीकत बयान करने जा रहा हूँ। लानत हो, लानत हो, लानत हो जो कौम को मिसयूज करते हैं, जो नौजवानों को इस्तेमाल करते हैं और फिर अपने मकासद हल करने के बाद इन बेचारों का हाल भी नहीं पूछते। ऐसे लोगों को मैं ये चाहता हूँ, नेशनल यूथ पाकिस्तान की टीम ये चाहती है, मैडम नुसरत कादर, ये मेरे भाइयों को लगता है ये चीज़ पसंद नहीं आई, उठ के जा रहे हैं। अच्छा फिर ठीक है, अच्छा ठीक है। तो हमारा नेशनल यूथ पाकिस्तान का टीम, ये सारा हमारा टीम है, आप सब हमारा टीम है। मैडम नुसरत कादर साहबा हमारी चेयरपर्सन साहबा हैं, अब्दुल कादर साहब, हमारी पूरी टीम यहाँ पे, सरदार शुजात हुसैन साहब, दीगर हमारे भाई यहाँ मौजूद है। अल्लाह ताला साहब ये बड़ी जगह से आए हैं। हमने बिल्कुल थोड़े लोग थे और बड़े थोड़े वसाइल के साथ इसका आगाज़ किया और इसको आगाज़ किए अभी 1 साल हुआ। और जब हमने स्टार्ट किया तो लोगों ने हमें मजाक किया, लोगों ने हमें ताने दिए, अभी भी करते हैं। अभी मैं खड़ा होता हूँ तो लोगों को पता चलता है बाकी ये चेयरमैन है, वो देखते रह जाते हैं, ये छोटा सा ये चेयरमैन। और मैंने स्कूल बनाया, ये बस समझाने के लिए बात करने लगा हूँ। तो चूँकि प्रिंसिपल मैं था, दुल्ला भाई टीचर्स आई, इंटरव्यू था उनका जैसा, मुझे आगे कहती भाई प्रिंसिपल को बुलाइएगा। और मैं छोटा था। तो बात ये करने का है, ये सलाहियतें अल्लाह की हैं खुदा। मुझे सिर्फ ये हुआ कि मुझे एक तो रहनुमाई अच्छी मिल गई, बिल्कुल साहब से मुझे अच्छी रहनुमाई मिल गई और मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। वरना मेरे जैसी उम्र में बड़ा मुश्किल होता है आप डिलीवर कर सकें, आप अपने आप को डेवलप कर सकें, आप किसी काज पे काम कर सकें, आप किसी मुल्क की बात कर सकें। नौजवानों को पता ही नहीं है। आज मैं हैरान होता हूँ, MA PhD होल्डर्स बच्चे हैं और उनसे पाकिस्तानियत की मतलब पूछे जरा। उसकी वजह है कि मैंने पहले आपसे हलफ ले लिया है कि हम तासुब पे नहीं जाएंगे। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये तासुब है कि हमारी एजुकेशन में डिवाइडेड सिस्टम है। खैर वो तो हमारे पूरे मुल्क में हर इदारे में हर एक चीज़ पे डिवाइडेड है। कोई मुझे नहीं कह सकता कि यहाँ पे माशाल्लाह सारे यहाँ पे पार्लियामेंट के मेंबर भी मौजूद है, ये कहे कि मैं आपको एक इदारा दिखा सकता हूँ जहाँ पे डिवाइडेड सिस्टम नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन मज़े की बात यह है कि आज हम ये हल करने जा रहे थे और लास्ट उसका पॉइंट ये था कि देखिए, जैसे मैंने कहा कि सभी अल्लाह को जो हमारी लीडरशिप की जिनकी आज हम बातें करते हैं वो चले गए, तो हम में से सब ने जाना है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी का देखिए सबको चाहिए एक मिशन बनाइए, एक विज़न बनाइए और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए। और उस विज़न के लिए अपना एक जो सबसे पहला पॉइंट है उसको मेन पे रखिए कि सबसे पहले कुरान सुन्नत है, पाकिस्तान है, उसके बाद दूसरी चीज़ है। कोई तासुब दिखाता है, कोई मजहबी बुनियाद पे आता है, कोई किसी चीज़ पे भी आता है, हम उसको बाद में देखेंगे। पहले हमने अपने मुल्क को देखना है, हमने अपने कुरान सुन्नत को देखना है, फिर इस पे जाना है। तो इंशाल्लाह इसके लिए मुझे उम्मीद है सारे लोग नेशनल यूथ पाकिस्तान का साथ देंगे और नेशनल यूथ पाकिस्तान आपका साथ देगी। रेडी है इंशाल्लाह? आवाज़ में दम नहीं है, एक दफ़ा दम बता दें। तो लास्ट पे आज ये कन्वेंशन नेशनल यूथ पाकिस्तान का जो करने का मकसद था वो ये था कि हम एक ये आहद कर सकें और यहाँ से निकलने के बाद पूरे मुल्क के अंदर एक अपनी भरपूर कैंपेन करके टीम के ज़रिए इसको फैलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से इसका निज़ाम और इसका सिस्टम बहुत सारी जगहों पे मौजूद है, लेकिन अभी हम नेशनल यूथ पाकिस्तान नौजवानों को कुछ डिलीवर करना चाहती है ताकि वो स्टैंड हो सके, वो खड़े हो सके। जब वो खड़े होंगे तो जो वो आज कर रहे हैं इस मुल्क के लिए। मुझे आपसे ज़्यादा आपकी फिक्र है क्योंकि ये नशिस्त दूसरी स्टार्ट होने को है। ये दुनिया में ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक ही नशिस्त हो,
نہ کچھ کھانے کو ہو اور نہ کچھ پینے کو ہو. میں آپ کی آواز پر بلند کر رہا ہوں اور تالیاں بجا کے بتا دیں ان کو کہ ہم زندہ دل قوم ہیں, ہم جذباتی نہیں ہیں, ہم عقل مند ہیں. اب میں ایک منٹ اپنی تقریر کا موجود کونسلر بھی ہوں اور مہمان بھی ہوں, لیکن یہ جو سیشن چلا ہے میں بڑی معذرت کے ساتھ منتظمین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو معزز مہمان ہوتے ہیں, یہ علماء ہوتے ہیں, یہ محترم پاشا صاحب ہماری رہنمائی کریں گے جناب ملک حضرت عوام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ جو کنونشن نیشنل ٹور پاکستان کا اسلام آباد میں, یہ غیر سیاسی کنونشن ہے اور میں پورے پاکستان سے یوتھ آزاد کشمیر جہاں سے لوگ میرے چھوٹے بیٹے بیٹیاں بہن جہاں تشریف لائے ان کا میں اپنی طرف سے اور اپنی تنظیم عوام پاکستان کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. اسلام آباد آنے بعد میرا اسلام آباد میں رہائش ہے, میرا اسلام آباد میں دفتر ہے. 3 کروڑ پورے پاکستان میں عوام برادری ہے جو کہ ادارہ کشمیر 4 صوبے جو پاکستان میں سب سے ہماری برادری موجود ہے, انہوں نے سب نے متحدہ ہو کر ہمیں یہ قیادت دی ہے. انشاءاللہ جو بھی لوگ یہاں مقرر پہلے آئے ہیں, میں سب کو یہ اپیل کرتا ہوں یہاں کے انتظامیہ کو, میری بہن نصرت بیگم جو میرے بلڈ کے ساتھ چلے گئے, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیئرمین صاحب کا بھی, اور انہوں نے بڑی جلچیلی تقریر یہاں کی ہے. اندہ کوئی بھی ہمارے لائق کسی قسم کا حکم ہو تو یہ سمجھیں یوتھ 3 کروڑ عوام اس یوتھ کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ یوتھ ایک جسم کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ہے. آپ متحد رہے, جو بھی مقرر بنائے. میں یہاں میرا بھتیجا پاشا صاحب کے بیٹا یہاں اس نے جو باتیں کی ہیں وہ یوتھ کے والے سے کی ہیں, سیاسی باتیں نہیں کی ہیں. مجھے اس کی خوشی ہے, میں اس کو بھی آج مبارکباد پیش کرتا ہوں. پیاس یونیورسٹی محمد